Assalamu alaikum students. I hope so that you are fine. Students, today it's our lecture number 38 of your course book Science Factor, and in our today's lecture we will start our learning from page number 67. So what we will discuss in our today's topic, students, in our today's topic we will see another type of electricity. In our previous lecture number 37, we saw the one type of electricity named as current electricity. Besides this, students, there is another type of electricity exists named as static electricity. Today we will see that what is static electricity. Besides this, we will discuss the uses of electricity, that where we are using electricity in our daily life, on daily basis in our life. Besides this, we will also see that why electricity is so important in our lives. Is it so important? If yes, then why? If not, then why not? Obviously it is important, and just we will see that why it is important. Now students, I would like to continue reading. Before start reading, I would like to tell you that what is what is static electricity. Students, in current electricity we saw that flow of electricity, like flow of electrons from jumping of electrons between atoms, is known as current electricity. Our electric current is produced by the jumping of electrons between two atoms. But what is static electricity and how it is produced? So students, static electricity is a type of electricity which produced by rubbing of two objects, by the rub of two objects, by rubbing two objects together. यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, जिसमें हम ये एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को, दो अजसाम को आपस में रगड़ने से प्रोड्यूस होती है. इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं. Now let's continue reading. There is another type of electricity called static electricity, जिसको static electricity कहा जाता है. It is caused by two objects rubbing together. ये दो objects को आपस में, दो अजसाम को आपस में रगड़ने से produce पैदा होती है. The friction causes the electrons to jump from one object to other. Friction अब क्या है? Causes the friction क्या करती है? फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करवाती है. व्हेन पीपल कम इन कांटेक्ट विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब लोगों का सामना होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इट कैन काज देयर हेयर टू स्टैंड ऑन हैंड. तो ये क्या कहते हैं कि उनके बालों को उनके हाथों के साथ जोड़ देती है. जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर हम समटाइम ऐसा होता होगा कि हमारे जो कपड़े हैं, सर्दियों में मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है, जब तो जो कपड़े हैं, वो क्लॉथ्स जो हमने पहने होते हैं, वो हमारी बॉडी के साथ चिमटते हैं. तो वो क्यों होता है? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है. इसके अलावा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक और एग्जांपल आपको देती हूँ. अगर हम, जब आप लोग बाल धोते हो तो आपने सर में ना कॉम्ब लगाना है, ठीक है. कंघी जब लगाओगे, उसी कंघी को फिर आपने कागज़ के छोटे छोटे पीसीस जो होंगे उनके करीब लेके जाना है. तो वो पीसीस जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो वो क्यों हुए हैं? क्योंकि हमने रब किया था दो चीज़ों को, अपने बालों को कंघी के साथ हमने रब किया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई. और इस इलेक्ट्रिसिटी का रिज़ल्ट क्या निकला कि वो जो छोटे छोटे पीसीस थे वो उसकी तरफ, कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए. See here in this box, green box, electricity travels at a speed of light. जितनी लाइट की स्पीड होती है उसी स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, which is 2,99,792 मीटर्स पर सेकेंड. इतनी स्पीड होती है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कम टूवर्ड्स द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के क्या इस्तेमालात हैं, इसको हम डेली बेसिस में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस स्टूडेंट्स. लाइक यू कैन थिंक अबाउट इट, like where we are using electricity on a daily basis. If we are pressing our clothes, then we are using presser, which runs on electricity. If we are watching TV, TV is also running on electricity. Besides this, if we are putting something in fridge, तो फ्रिज क्या है? फ्रिज भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन चलती है. And many more other things are there which run on electricity. Electricity, let's start reading students. Electricity is used for so many things that in so many places and in so many. electricity बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, बहुत सी जगहों पर. it is hard to imagine life without electricity. के बगैर ज़िंदगी का
तख़य्युल जो है वो मुश्किल है, बट ह्यूमंस ओनली वर्कड आउट हाउ टू मेक एंड यूज़ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 150 ईयर्स अगो। तो कहते हैं कि 150 साल पहले इंसानों ने क्या किया था, उन्होंने बस ये चीज़ सीखी थी कि हाउ टू मेक एंड यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी को बनाना कैसे है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है। नेक्स्ट, सो फॉर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम दैट ह्यूमंस हैव एग्जिस्टेड नथिंग वाज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कहते हैं कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं किया किया था, यानी कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को पावर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं मिली थी। नाउ स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 68। टुडे वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन द होम। आज हम इलेक्ट्रिसिटी घरों में इस्तेमाल करते हैं, इन स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, इन ऑफिसेज में इस्तेमाल करते हैं, इन फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं, इन शॉपिंग मॉल्स में भी। टुडे इवन सम कार्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। आज जो है वो बहुत सी कार्स को भी कहाँ से पावर मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी वुड बी इन डार्क। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम अंधेरों में चले जाएंगे। नेक्स्ट सी हियर अ साइंटिफिक फैक्ट, इट्स एन अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट स्टूडेंट्स। देयर इज एन एनिमल, एक जानवर ऐसा है दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी नेचुरली, जो कि नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। दैट एनिमल इज द इलेक्ट्रिक ईल। इसमें नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। Now students, come towards our today's question. Our today's question is, what is static electricity and how it is produced? So this is another type of electricity called static electricity, and this is caused by the rubbing of two objects together. Second, uses of electricity. तो क्या uses हैं इसके? We are using electricity in offices, in homes, in school, in factories and in shopping malls. तो हमने इसके यूजेस, इसके अलावा और भी हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, जैसे कि एसी, फ्रिज वगैरह। स्कूल्स में हम कंप्यूटर लैब्स में इस्तेमाल करते हैं, ऑफिसेज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइट्स, हमें बल्ब की तो हर जगह ज़रूरत होती है ना। इसी तरह से फैक्ट्रीज़ में, शॉपिंग मॉल्स में। So this is all about our today's lecture, student. If you have any type of confusion, you can listen this lecture again and again. Stay blessed, stay safe, stay home. Khuda Hafiz.